ڈی جی ریسکیو نے بھی جوائن کیا. اسد علی خان صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ یہ بتائیے گا کہ اس واقعے سے متعلق آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اب تک؟ السلام علیکم جی. یہ واقعہ سنگی ٹریک سے وزیر صحت صاحب نے فرمایا ہے کہ دور کا علاقہ ہے. اس میں ہم ڈپٹی کمشنر سے ابھی ہمارا رابطہ ہو چکا ہے اور ہمارے جو ریسکیو 1122 کی ایمبولینسز ہیں ہم نے فوراً ملتان سے اور پشاور سے اپنی موبلائز کی ہیں. وہ جو ہے جائے حادثے میں کیسے پہنچیں گی تو ہم آپ کو کوئی واضح تصویر پیش کر سکیں گے. اسد علی خان صاحب، آپ فلی اکوپڈ ہیں ہر طرح کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے؟ خدا نخواستہ اگر کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے تو کیا آپ کے پاس تمام تر سہولیات موجود ہیں؟ جناب، جو ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا ہے وہ ہمیشہ فلی اکوپڈ ہوتا ہے، مگر ہماری دعائیں یہی ہوتی ہیں کہ کوئی ایسی بڑی کارروائی نہ ہو کہ جس میں ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ نقصانات کو اٹھانا پڑے. ابھی آپ بتا سکتے ہیں کتنی ایمبولینسز روانہ کی گئی ہیں اور کتنی زخمی ہیں لوگ جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں جی. ہماری 8 ایمبولینسز جو ہیں ریسکیو 1122 کی جو بالکل منی ہاسپٹل کی طرف ہوتی ہیں وہ بالکل روانہ ہیں اور انشاءاللہ جلدی وہ جائے حادثہ پہ پہنچ جائیں گی اور جیسے وہ پہنچیں گی تو اپنی وہ کارروائی شروع کریں گی اور مریضوں کو جو ہے جدھر بھی مناسب ہوگا یا چارسدہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں یا پشاور کے ہاسپٹل میں، جیسا وزیر صحت صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ یہاں ایمرجنسی ہم نے نافذ کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ تھوڑا سا موقع دیجیے گا کہ ہم اپنے جا کے کارروائی شروع کریں ادھر. ٹھیک. اچھا اسد علی خان صاحب یہ بھی کنفرم کیجیے گا ڈپٹی کمشنر سے آپ کی بات ہوئی ہو، ان سے بات کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ نوعیت اس دھماکے کی یا اس واقعے کی آپ نے طے کی ہو کہ کم نقصان ہے کم سے کم ایمبولینس؟ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، چونکہ چارسدہ ایسا ضلع ہے کہ جہاں یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں. جیسی ہمیں اطلاع ملی ہے ہم نے اسی وقت اپنی کارروائی شروع کی ہے. اس کے بعد چونکہ ڈپٹی کمشنر بھی فوراً اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے نکلے تنگی کی طرف گئے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اس بات کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ تنگی جو ہے یہ تھوڑا دور کا علاقہ ہے. بالکل دور کا علاقہ ہے اور ایسے میں آپ نے بتایا کہ 8 ایمبولینسز جو ہیں وہ روانہ کی گئی ہیں. ڈپٹی کمشنر سے بھی آپ کا رابطہ ہوا. بہت شکریہ اسد علی خان صاحب، آپ نے دنیا نیوز کو وقت دیا. شہرام ترکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہرام ترکی صاحب، اسد علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ تقریباً 8 ایمبولینسز انہوں نے روانہ کی ہیں. اس صورتحال کو لے کر آپ نے کوئی انیشیل بیسس پر رابطہ کیا ہو؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے چارسدہ سے؟ دیکھیں جی، جو انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے وہ مجھے بھی مل رہی ہے اور یہی آتھینٹک ہے. 1122 اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، ایمرجنسی کلیئر کر دی ہے، پولیس ابھی بھی لگی ہوئی ہے. تو جب چیزیں کلیئر ہوں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی تک تو یہ انفارمیشن. شہرام ترکی صاحب، لیکن جیسے کہ آپ خود بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ اوور آل ایک جنرل تھریٹ تو ہے ملک میں، تو اس سلسلے میں کوئی اسپیشل سیکیورٹی میجرز لیے گئے ہیں، کوئی خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں جو مختلف خاص طور پر سرکاری عمارات ہیں یا اہم عمارات ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل جو پریکاشنری میجرز ہیں، جو سٹیپس لینے چاہیے وہ آلریڈی پولیس نے لیے ہوئے ہیں. سیکیورٹی فورسز سرچ آپریشنز بھی کر رہی ہیں، باقی ایریا کو بھی سیکیور کر رہی ہیں، تھریٹ الرٹس بھی جاری کی گئی ہیں، لوگوں کو بھی ویجیلنٹ رہنے کی درخواست کی گئی ہے. تو جو ممکن ہو سکتا ہے ہیومنلی پاسبل وہ تو ہے. اوبویسلی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس ٹائم کہاں پہ کیا کرتے ہیں، تو ایک کلیئرٹی 100% ایکوریٹ تو نہیں ہوتا، لیکن الرٹ ہے اور پوری فورسز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں. تو دعا ہے کہ یہ دیر ختم ہو جائے اور جو امن کا جو سلسلہ چل پڑا تھا وہ برقرار رہے اور چلتا رہے. ٹھیک، بہت شکریہ شہرام ترکی صاحب، آپ نے دنیا نیوز کو وقت دیا. آپ کا بتانا ہے کہ ہاسپٹل فلی اکوپڈ ہے اور وہاں پر جو زخمی لائے جائیں گے ان کو سہولیات ملیں گی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آفتاب شیر پاؤ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ انہی کا علاقہ ہے، ان سے مزید اس پر بات کر لیتے ہیں. آفتاب صاحب، آپ کا یہ علاقہ ہے، حلقہ ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس اس دھماکے سے لے کر اس فائرنگ کے واقعے کو لے کر کوئی انفارمیشن ہے تو شیئر کیجیے گا. جی میرا حلقہ ہے اور بڑا بہت ہی بڑا ثانیہ ہے اور تنگی بذات خود یہ پہلی بار نہیں ہے. چارسدہ میں تو بار بار ہوتے رہے ہیں یہ ایسے واقعات، اور یہ سلسلہ جو ایک چند دنوں سے جو شروع ہے اور یہ اس کی کڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چونکہ اب ان کو اور کوئی جگہ نہیں ملتی تو سافٹ ٹارگیٹس کو زیادہ وہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں. چارسدہ اور تنگی جو ہے ممن ایجنسی کے ساتھ منسلک ہے اور اس لحاظ سے یہ جو ہے واقعات وہاں سے ہوتے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں صرف دہشت وہ سوئسائڈ کا وہ نہیں بلکہ فائرنگ کا سلسلہ بھی اس پہ ہوا ہے. تو یہ ایک منظم طریقے سے اس کو اوپر یہ
काम किया गया। और तो आफ्ताब शेरपाव साहब, जो कि आपका ये हल्का है, आपको बेहतर तौर पर इसका अंदाजा है, इस तहसील में ये जो सेशन कोर्ट है किस हद तक ये मसरूफ होती है, कितना यहाँ पर रश होता है, और यहाँ पर जो अस्पतालों की सूरत हाल है उससे आप मुतमईन हैं? खासतौर पर जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसमें जो तब्दीली की बात की गई थी, तो जो यहाँ पर अस्पताल है इस वक्त ये इक्विप्ड है फुली? एक तो ये सेशन कोर्ट जो है ये बिल्कुल नजदीक ही है मोहम्मद एजेंसी के साथ, और दिन को तो बहुत ज्यादा रश होता है। सारे केसेस यहाँ पर होते हैं तो रश तो बहुत ज्यादा होता है, साथ बाजार भी है, तो उस लिहाज से बाहर वकला के बाहर भी है, सब चीजें हैं, तो उस लिहाज से तो बहुत ही अहम वो है। और ये एक दफा फिर सेशन पहले जजेस पे वो किया गया, अभी सेशन कोर्ट या सिविल कोर्ट्स के आते के अंदर ये सब कुछ हुआ है, तो उस लिहाज से ये एक मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। मुनज़्ज़म, लेकिन 4 सतह को हमने देखा है कि बार बार निशाना बनाया गया, इससे पहले कुछ बड़े वाकयात भी यहाँ पर हुए हैं। आफ्ताब शेरपाव साहब, आपकी नजर में इसकी क्या वजह है कि 4 सतह को बार बार टारगेट किया जा रहा है दहशतगर्दों की जानिब से? मैंने जैसे कहा कि मुझ पे 4 हमले यहाँ 4 सतह में ही हुए हैं। 4 सतह के जो बादशाह खान यूनिवर्सिटी उस पे हमला हुआ है, ये सब वहाँ पे स्कूलों को हर दूसरे तीसरे दिन निशाना बनाया जाता है, क्योंकि ये मुंसलिक है मोहम्मद एजेंसी के साथ। और मोहम्मद एजेंसी के जो कुछ ये तालिबान के लीडर जो हैं वो मोहम्मद एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं, तो यहाँ पर इनकी रसाई है और इनका वो इन्फ्लुएंस उस लिहाज से है, तो वो उस लिहाज से ये ज्यादा टारगेट बनता है। और सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है सूबे में देखे तो सबसे ज्यादा वाकयात 4 सतह में ही हुए हैं। अच्छा आफ्ताब साहब, ये कंफर्म कीजिएगा कि आपका हल्का है, आपका इलाका है, आपने राब्ता किया, कुछ कंफर्म हुआ कि ये एक धमाका है, 2 धमाके हैं, फिर इसके बाद फायरिंग हुई, इससे पहले और कुछ जख्मियों से मुतालिक आपको कुछ बताया गया हो हल्के से लोगों की जानिब से? मैंने अभी DPO से बात की और मेरे बेटे वहाँ पर मौजूद हैं, गांव में ही मौजूद हैं, वो भी उधर राब्ता उन्होंने रखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि धमाका हुआ है, सुसाइड, और उसके बाद ये फायरिंग चल रही है। तो मुझे एग्जैक्ट अभी उन्होंने तादाद नहीं बताई इसकी कैजुअल्टीज की कि कितनी कैजुअल्टी है, लेकिन ये है कि वाकया बड़ा संगीन है। वाकया बड़ा संगीन है और आपका हल्का इंतखाब है। आफ्ताब शेरपाव साहब, आपने दुनिया न्यूज़ से बात की, आपसे इंशाल्लाह दोबारा भी राब्ता करेंगे इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सफीउल्लाह भी मौजूद हैं और ये इस वक्त आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ये इस वाकये के फौरी बाद की तस्वीर हम देख सकते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त भी कर दिया गया है। मंजूर दंगी एक निशायत हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। मंजूर दंगी साहब, बताइएगा, आप क्या वहां पर मौजूद थे जब ये धमाका हुआ है, क्या आपने देखा? बिल्कुल जी, मैं तहसील मेंबर हूँ इस तहसील तंगी का। मैं गुरशीद खान जो हमारे इस इलाके का SHO है, मैं उसके साथ कला था नाकाबंदी पर और हम सिक्योरिटी इस हालात को डिस्कस कर रहे थे कि सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया जाए। वो बहुत बहादुरी से उसके नौजवान वहाँ पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे। इतने में हम बात ही कर रहे थे कि हमारे सामने खुदकश धमाकी हुई, फायरिंग शुरू हुई और इसी असना में हमारे जो गुरशीद खान SHO साहब है वो उस धमाके की तरफ दौड़ पड़ा, हम भी दौड़ पड़े और जो वहाँ पर स्कूल थे कहीं भी हमने उसको की, हमने सारे स्कूल्स को हिदायत की कि सारे स्कूल बंद कीजिए। और जो तहसील हमारा है, तहसील जहाँ पर नाज़िम बैठते हैं, DSP साहब बैठा है, वहाँ पर भी ब्लास्ट हुआ, खुदकश अंदर हुआ और जो कोर्ट है हमारी तहसील के वहाँ पर भी खुदकश एंटर हुई। जी अच्छा मंजूर साहब, ये बताइएगा कि एक ही धमाका था जो हुआ और फायरिंग धमाके के बाद हुई? नहीं जी, एक पहला धमाका हुआ, धमाके के साथ फायरिंग शुरू हुई, फिर दूसरा धमाका हुआ, तकरीबन 3-4 धमाके ब्लास्ट हो गए फायरिंग और दौरान। जी, और आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये खुदकुश हमला था? बिल्कुल जी, मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये खुदकश था। हमारे साथ जो वहाँ पर जो जमीनी पुलिस पड़े हैं उनसे भी मैंने कंफर्म किया, उसने एक खुदकश को आवाज दी और आवाज देने के साथ उसने ब्लास्ट किया। अच्छा मंजूर साहब, ये बताइएगा कि आपने देखा कि आप बता रहे हैं आप नाके पर थे, आप इस सूरत हाल को दूर से देख रहे थे, कितने हमलावर आपको नजर आए और ये सारे धमाके एक ही जगह पर हुए?
नहीं, ये मुख्तलिफ जगहों पर, एक तहसील पर हुआ और दूसरा जो है कोर्ट पर हुआ जी। और हम उस दौरान जब पहला ब्लास्ट हुआ तो उस दौरान हम दौड़ पड़े और फिर हमें कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि यार वो हालत जो देख रहे थे हम, बिल्कुल हमारे आंखों से आंसू जा रहे थे और कुछ हमें समझ तो अभी तक मंजूर नहीं आ तंगी रहा। साहब, ये हमलावर जो थे ये पैदल थे, क्या ये कचहरी में दाखिल हो गए, और ये जो दोनों धमाके हैं इनमें कितना वक्फा था? इसको मैं ये कंफर्म नहीं बता सकता कि वो गाड़ी पर आई या किस चीज पर आई, क्योंकि मैं चौथ साहब के साथ नाकाबंदी पर कुछ फासले पर करा था और हम बिल्कुल नाकाबंदी, मगर ये अपोजिट साइड से आए हैं। जिस साइड पर हम खड़े थे उस साइड से कोई नहीं आया, ये दूसरी साइड से लोग आए हैं जी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये धमाका जिस तरह आप बता रहे हैं कि कोर्ट्स पर हुआ, तो कोर्ट्स के अंदर जाके हुआ या बाहर हुआ, गेट पर हुआ? जी, पहले गेट पर हुआ, फिर हम जो लोगों को बचा रहे थे, रेस्क्यू कर रहे थे, फिर वो अंदर दाखिल हुई, फिर अंदर फायरिंग शुरू हुई, फिर हमें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि फिर मैं स्कूलों की तरफ दौड़ पड़ा। स्कूल को करीबी स्कूल थे उसके साथ, तो मैंने स्कूलों को बंद स्कूल किया। को भी बंद करा। अच्छा मंजूर साहब, ये बताइएगा कि इस कचहरी में उस वक्त रश कितना था जब ये धमाके हुए हैं? सुबह का टाइम था जी, इस टाइम लोग आ रहे थे। इस दौरान दो बच्चे मेरे सामने जो जख्मी पड़े थे, दो बच्चे भी उसमें शामिल थे जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे। एक पुलिस वाला शहीद हो गया, दो बंदे मेरे सामने से एक्सपायर हो गए। अभी औरों का कुछ इल्म नहीं है कि और कितने शहीद हो गए होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बुरी हालत मंजूर तंगी साहब, फिर उसके बाद फायरिंग बंद हो गई बिल्कुल, और अभी आप कुछ बता सकते हैं कि अंदाजन कितने लोग जख्मी हुए हैं या कोई खुदा न खास्ता जाँ बाग हुआ है? नहीं जी, फायरिंग बंद नहीं हुई। तकरीबन 10-15 मिनट के लिए फायरिंग चलती रही, बिल्कुल फायरिंग हो रही जी वहाँ पर। और कितने लोग जख्मी हुए हैं या कोई खुदा न खास्ता जाँ भाग भी हुआ है, इस बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल 2 लोग मेरे सामने एक्सपायर हुए हैं और तकरीबन 8-9 जख्मी मैंने खुद देखे, और बाकी का इल्म नहीं है, क्योंकि बिल्टी अभी आ रही है। कुछ अंदर लोग जख्मी हो गए, कुछ शहीद हो गए, अभी उसको कंफर्म नहीं बता सकता। 2 बंदे मेरे सामने एक्सपायर हो गए और 7 मेरे सामने जख्मी पड़े थे। अच्छा मंजूर साहब, ये बताइएगा, आपने कहा कि 10-15 मिनट तक फायरिंग का सिलसिला चलता रहा, ये कोर्ट के अंदर से आवाज आती रही, फोर्सेज जब कोर्ट में दाखिल हुई वहां जाकर उनकी जानिब से को फायर किया गया? ये धमाके के फौरी बाद आपको लगता है खुदकुश हमलावर या जो हमलावर वहां मौजूद थे खुदकुश हमलावर ने जैसे एक ब्लास्ट किया वहां पर धुआं हो गया और लोग इधर उधर हो गए, हम रिसीव करने लगे, और फिर उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के दौरान दूसरा धमाका हो गया, फिर ऐसा कुछ देर बाद तीसरा धमाका हो गया, तो ऐसा वक्त से धमाके होते गए और फायरिंग चलती रही। और जो हमारे SHO साहब और जो वहाँ पर पुलिस नौजवान करे थे, उन्होंने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया। उन लोगों ने जानों का कोई मतलब। अच्छा, अब ये कंफर्म कीजिएगा मंजूर साहब कि अब फायरिंग की कोई आवाज नहीं आ रही? अभी जी मैं हॉस्पिटल आ गया हूँ, हॉस्पिटल चूंकि उस जगह से थोड़ी दूर है, तो मैं कोई फायरिंग की आवाज अभी नहीं सुन रहा। आप किस अस्पताल में आए हैं? यहाँ जख्मी लाए गए हैं? यह अस्पताल सहूलियात से इक्विप्ड है? यहाँ पर जख्मियों को देखा जा रहा है? बिल्कुल जी, सहूलियात कोई सहूलियात यहाँ पर नहीं है, कोई एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद नहीं थी। बेशक डॉक्टर साहिबान अपनी फराइज अंजाम दे रहे हैं, खड़े हैं। कितने जख्मी मंजूर साहब यहाँ पर लाए गए हैं? यहाँ पर जी 8-9 जख्मी लाए गए हैं और 2 डेड बॉडी जो मैंने देखे वो आ गए हैं जी। और आपने ये देखा कि मजीद भी अभी वहाँ पर कुछ जख्मी मौजूद हैं जय वकुआ पर, या फिर सबको फिलहाल यहीं पर लाया गया है? जय वकुआ जी मैं आ गया हूँ यहाँ पर हॉस्पिटल में, मैं खड़ा हूँ इस टाइम, क्योंकि ब्लड देने की कोई जरूरत हो तो हम आ गए हैं ब्लड देने के लिए। मैंने और दोस्तों को बुलाया, सारे गाँव के लोग आ गए हैं, मगर मैंने कहा कि तहसील का हॉस्पिटल बंद किया जाए, क्योंकि जो वहाँ पर नाके पर लोग मौजूद थे, एहलकार मौजूद थे, उन्होंने कार्रवाई की, हमलावरों के ऊपर कोई फायरिंग की या उन्होंने खुद को ब्लास्ट कर लिया? बिल्कुल जी मैं खड़ा था नाकेबंदी पर, मैं खड़ा था। 2 पुलिस अफसर मेरे साथ खड़े थे, वो बिल्कुल धमाके की तरफ दौड़ पड़े, उन्होंने बहुत डिफेंस किया। मतलब अभी ये खुदकुश पता नहीं किस तरफ से आया, क्योंकि ये जो है कैट है, कोई इस तरह कोई सिटी से थोड़ा फासिल है, तो मतलब कोई किसी जगह से भी खुदकुश आ सकता था। उसमें पुलिस अफसर की मेरे ख्याल से कोई भी गफलत नहीं थी, क्योंकि मैं वहाँ पर बजाते खुद खड़ा था। ठीक मंजूर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस तमाम मामले पर मजीद बात करते हैं। जाहिद खान साहब से भी बात करेंगे। मंजूर, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिए। ऐसे में हम DIG मर्दान का भी मौक़िफ़ देख रहे हैं। उनका बताना है कि 3 खुदकुश हमलावरों ने कचहरी पर हमला किया, ऐसे में एक को गेट पर ही मारा गया, बाकी 2 को कचहरी के अंदर मारा गया। जी हाँ बिल्कुल, और जैसे कि मंजूर ने भी काफी ज्यादा हमें तफसीलात फ्राहम की हैं, और उनका ये बताना है कि पहले एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया, और जो ही लोग उससे होने वाले नुकसानात के लिए देखने के लिए उस तरफ बढ़ रहे थे, तो उसी दौरान फायरिंग भी हुई और उसके बाद फिर एक और धमाका हुआ।